side resting on HP. Okay, and then it says two of its vertical faces are perpendicular to sorry, resting on HP on one of its uh, face. Okay, and two of its faces, vertical faces, are equally inclined to VP. Draw projections. Question समझे? Question says a cube 5 centimeter side resting on HP on one of its face. Okay. Two of its next line. Two of its vertical faces are equally inclined to VP. Draw projections. तो क्वेश्चन सेज कि पहले तो ये रखा हुआ है, तो आप पैरेलल केस भी बना सकते हैं पहले अगर आप चाहें तो बेस केस बनाइए, और उसके बाद इसको इफ इट सेज इक्वली इंक्लाइंड तो आपको क्लिक करना चाहिए कि अगर ये 90 डिग्री है इट शुड बी लाइक समथिंग लाइक दिस दैट इट मेक्स 45 डिग्री फ्रॉम द VP. ओके, इट माइट बी 30 25 अगर कोई केस ऐसा दिया हो, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ इट सेज इट्स इक्वली इंक्लाइंड व्हिच मींस टू ऑफ इट्स फेसेस are kept at an angle of 45 degree from VP. Okay, is it alright? So it has been kept something like this. Okay, you follow, right? So you can directly make this because this is a simple case. Otherwise अगर ये थोड़ा सा difficult case होता है तो आप base case बनाते हैं. Base case is this. So base case को फिर आप टेंड करते हैं, ठीक है? So at this point of time we can directly perform the task. So directly we can 45 degree पे you make a lamp. Okay, then nomenclature A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Okay, then इसे प्रोजेक्शन पे ये जब आप 45 डिग्री में करोगे तो अलाइन होएगी, जब एंगल चेंज होएगा तो बदलेगा. This becomes your final projection of the object. Okay, this is the point A, this point B, this point C. Okay, this is 4, Four. this is 3 1 3, 3, 1, 1, 2. 2. 2. Please make your objectives clear. आपका objective at this point of time is to get clear in your exam. आपको यहाँ ट्रॉफी मिल रही है, नहीं मिल रही है, 10 में से 10 मार्क्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, does not really make sense. But अगर आप एग्जामिनेशन नहीं क्लियर कर रहे हो, then I don't know how to help you. तो अगर आपको अपने प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है, that how to go about it, then nobody can help you. एग्जामिनेशन आप कुछ भी करके एग्जामिनेशन अगर क्लियर कर ले रहे हो देन आई एम हैप्पी. आई डोंट रियली केयर व्हाट यू डू. ऑफ कोर्स सबमिशंस आर आल्सो पार्ट ऑफ इट, but then examinations are more weightage. अगर ये क्यूब है तो एक्चुअली आप बराबर ही लोगे. अगर ये क्यूब है तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल. 5 centimeter. If it's cube, this cuboid, then height may vary. We know. Okay. Then if we need to project this on side plane, जब तक साइड में क्वेश्चन में ना आए तब तक करने की जरूरत नहीं है. दिस इज पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस. आप अपने क्वेश्चन में कर लीजिए. एग्जाम में जितना पूछा जाए उतना ही ज्ञान देने की जरूरत है. बिल्कुल कोई बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास ज्यादा ज्ञान. ओके, एग्जामिनेशंस आर बेस्ड ऑन टाइम मैनेजमेंट
and learnings are based on time devotion. Learnings are different, examination is a different one. So now चलो बताओ पॉइंट बताओ ये क्या है बी ऊपर है ना किसने बोला बी 1 ये B ये 4 2 ये 3 ये AC AC ये D D D D alright ठीक है now this is your side projection if you look somewhere from here okay 1 2 3 alright alright then let us come to okay there might be other cases it might be at 30 degree the faces might be at 30 degree the faces might be at 25 degree you will be able to handle right अगर 30 डिग्री होता तो ये थोड़ा सा इस तरह से बनता तब आपका ये पॉइंट अलग आता ये पॉइंट अलग आता आपको पीछे एक लाइन डॉटेड बनानी पड़ती उस केस में यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ओके समझ आई बात तो ये एंगल अलग हो सकता है हिडन ज्योमेट्री भी बनानी होती है तो जो हिडन ज्योमेट्री है वो भी आपको बनानी है और जब आप सामने से अगर ये 30 डिग्री पे होता आप इसको देख रहे होते तो ये पीछे वाली लाइन आती है जो आपको नहीं दिख रही है वो हिडन ज्योमेट्री आपको डॉटेड में बनानी है ठीक है ऑलराइट नेक्स्ट लेट्स से इफ इट सेज दिस इज द केस दिस इज हेक्सागोनल as on prism prism ठीक है so if it says a hexagonal prism with one of its edge of base लिखो hexagonal prism 3 centimeter side of base hexagonal prism 3 centimeter side of base 6 centimeter height 6 centimeter height is resting on HP on one of its rectangular faces one of its rectangular faces okay ऐसे रखना है ठीक है ये rectangular faces है ये hexagonal faces one of its rectangular faces okay and the hexagonal face makes an angle of 30 degree from VP. The hexagonal face makes an angle of 30 degree from VP. Draw projections. क्या बताया मैंने? क्वेश्चन पढ़िए. a hexagonal prism अब इतना इमेजिनेशन आपका डेवलप होना चाहिए कि कहाँ तक की बात हो रही है. If it says कि hexagonal prism इसमें rectangular faces हैं इसमें ये hexagonal faces हैं it says it is kept or resting on one of its rectangular faces which means the case is something like that. So this becomes your base case and then it says one of its hexagonal face is tilted at an angle of 30 degree from VP. तो ये कुछ इस तरह का केस है. अब हमको बनाना है. अब इसमें क्या है अगर हमको हेक्सागन बनाना है ट्रू शेप में अब यहाँ पे हम फ्रंट से देखेंगे तो अभी ट्रू शेप नहीं दिखेगा ट्रू शेप हमें किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर विजुअल एंगल पे दिखता है राइट तो मैं इसको जब परपेंडिकुलरली देखूंगा तब मुझे इसका ट्रू शेप दिखेगा जब मैं इसको परपेंडिकुलरली देखूंगा या इसको परपेंडिकुलरली देखूंगा तब मुझे ट्रू शेप दिखेगा ओके और जब भी इस तरह की कोई केस आए तो आपको ध्यान रखना है कि जो उसका पॉलीगन वाला फेस है आप पहले उसको ड्राफ्ट करने की कोशिश करेंगे ट्रू शेप में ठीक है rather than the joining layers because again पिरामिड आता है तो हमको पहले इसको ड्राफ्ट करने की कोशिश करनी है एपेक्स को नहीं इसी तरह से प्रिज्म आता है तो पहले हमको इसको ड्राफ्ट करने की कोशिश करनी है इसको नहीं ठीक है so now if I put it like this and at an angle of 30 degree
अगर मैं इसका बेस केस बनाता हूँ विच मीन्स पैरेलल, फिर 30 डिग्री, पहले मैं क्या करूँगा पैरेलल बनाऊंगा, फिर 30 डिग्री पे रोटेट करूँगा प्रोजेक्शन के लिए। पैरेलल केस ये वाला है, ठीक है, जबकि ये दोनों फेजेस परपेंडिकुलर टू वीपी हैं। फिर मैंने इसको 30 डिग्री पे रोटेट कर दिया तो 30 डिग्री टू वीपी हो गया, ठीक है। पैरेलल केस जब मैं इसको इस तरह से बनाऊंगा तो क्या होगा, ये मुझे ट्रू फेज दिखेगा कहाँ, साइड प्लेन में। तो एक्चुअली अगर आप ऐसे रखेंगे इसको, अब यहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, अगर आप इसको इस तरह से रखेंगे, नींद आ रही तो मुंह धो लेना, बट अगर नहीं समझ आ रहे तो अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, प्लीज बी वेरी अटेंटिव। अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे तो आपको कहाँ पे रखना पड़ेगा हेक्सागन, दिस विल बी योर फर्स्ट ड्राइंग, नंबर 1। अगर मैं इसको डालूं, अगर आप यहाँ से देखेंगे, पर अगर आप अकलमंद हुए तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है, तो आपको साइड प्लेन पे नहीं बनाना पड़ेगा। अब क्या हुआ, अब मैंने इस तरह से इसका पूरा हेक्सागन किया, उसके बाद मैं इसको रोटेट कर दूंगा 30 डिग्री, तब भी मैं सेम पोजीशन ले लूँगा, ठीक है। तो मुझे साइड प्लेन पे ट्रू शेप देखने की जरूरत नहीं है, तो साइड प्लेन अगर नहीं पूछा है तो फिर मैं वहां से नहीं नीचे करूँगा, तो क्या करूँगा मैं इस तरह से रखूँगा इसको, ठीक है। So I delete this. Yes. ये भी हटा दूँ, क्वेश्चन लिखिए तो नहीं समझ आएगा। और प्रॉब्लम मेरी दूसरी है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको पिछला नहीं समझ आ रहा है तो आप अगले को कैसे कोप अप कर रहे हो वो मुझे नहीं समझ आ, और नहीं कर रहे हो तो फिर मैं पीछे जाना मेरे लिए फिर रिवाइंड यहाँ नहीं पॉसिबल। तो कंफ्यूजन्स वी कैन डिस्कस, क्वेरीज वी कैन डिस्कस, बट इफ यू थिंक कि हम फिर से शुरू कर पाएंगे तो गाड़ी नेक्स्ट स्टेशन पहुंच चुकी है ऑलरेडी। ऑलराइट, सो इट सेज क्वेश्चन आपको समझ आया, रेक्टेंगुलर फेसेस पे कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि वन ऑफ इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स हेक्सागोनल बेस, ठीक है, एंड वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस इज एट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो ये इस तरह से बन जाता है, ठीक है। अदरवाइज अभी के केस में ये ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, राइट, बेस केस ये फिर ऐसे, बट हम क्या कर रहे हैं, वी प्लेड स्मार्टली, so we put it like this because it does not hamper the question. कई बार इनएविटेबल हो जाता है कि हमको इसको साइड प्लेन में ही पहले बनाना पड़ेगा। सो नाउ देयर इज अ सीक्वेंशियल ड्राइंग 1 2 3 4 5 करके, तो अब मैं 1 2 3 4 5 लिखूंगा कि अब मैं इसको ऐसे प्लेस कर रहा हूँ, तो मैं बेस केस में हेक्सागन ऐसे बना दिया मैंने, दिस इज आवर फर्स्ट ड्राइंग, ओके, ऑलराइट, देन A B C D E F। अभी के केस में हाँ, ओह सॉरी माय मिस्टेक, थैंक यू। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, बाकी किसी को नहीं आ रहा, ठीक है, ऑलराइट, सो दिस बिकम्स आवर फर्स्ट वन, A अरे वंशज सर, आई डोंट नो इफ यू रीड, हाँ सर उसका कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं ना, जो रेफरेंस लाइन है उसके नीचे जो वो अपनी there is no distance given, you can assume that is okay, कुछ भी ले सकते that is up to you, ठीक है, but it can't go beyond vertical plane। I mean ये ज्योमेट्री जो है ये इसके ऊपर नहीं आ जाएगी किसी भी कंडीशन, then there will be no projection, बस इतना तो ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन हमने करा क्यूब का करा, सिंगल, ये क्या कर रहे हैं हम, सिंगल इंक्लिनेशन ऑफ सॉलिड्स। इसके पहले हमने सिर्फ सॉलिड का बेस केस समझा था, अब हम कर रहे हैं सिंगल इंक्लिनेशन, मतलब एक टिल्ट है, भी डबल टिल्ट नहीं है। डबल टिल्ट होता है, आप कहते हैं कि वीपी से भी 30 डिग्री टू एचपी है, फिर वीपी से इसकी एचपी से भी है 30 डिग्री, तो द केस वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस, डबल इंक्लिनेशन 30 डिग्री वीपी से, फिर बेस केस में जो भी दिया है एचपी से कोई एंगल, तो ये बनता है, ठीक है, दैट वुड हैव बीन डबल इंक्लिनेशन, अभी सिंगल इंक्लिनेशन।
साइड में बनाना है बना लेंगे, साइड में जब बनाएंगे तो यहाँ से देखेंगे इसको अगेन ये वाला पेज दिखेगा और उस तरफ के जो पेज जहाँ नहीं लिखने हैं वो उसमें फॉर्म दिखेगी, ये वाले पेज वहाँ पे डॉटेड दिखेगी और वो सेम आएगा। कर लेंगे कैसे करना है, ए बी सी डी ई को पहले करना है, फिर 1 2 3 4 पे बनना है और फिर दोनों को मिलाना है, ठीक है। डोंट इंटरमिंगल, ठीक है। एक लाइन में मिल रहा है A1 तो मिला दें, फिर पता चला बाद में आपने A1 को ही मिला, अंडरस्टैंड। ये एक लाइन में A और 1 मिल रहा है, कुछ मिल रहा है यहाँ पे B और F में यानी कुछ B, so you kind of do it for the sake of doing it quickly, you will undo it, alright। So उसको देख लेना। The next question would come, let's say a pyramid